कर Everybody, mark your attendance. Okay, so try to go directly into the topics. आवाज कट रही है यहाँ पे बारिश हो रहा है anything want to say you can write on the chat also okay so should I start or should I wait when you are having the mid semester examination 5th, 6th, and 7th. 5th 6th and 7th okay before that we'll try to finish this topic transistor okay and your basically mid sem will have the topic of transistor also okay. So 2 classes from 2 or 3 days we were busy in the conducting a final year final semester examination okay so the class what we have missed I will take on Sunday okay 1 or 2 classes will be on Sunday or Saturday that is tomorrow any Take problem it tomorrow only. no see because we are I want to give you some time for study the things before your mid semester so it is better to finish all these classes before 5 or before 3 or 2 okay so you'll have the time for revision and look through the chapters and prepare yourself so tomorrow if you are having free session any free period no from civil and mechanical सर फर्स्ट हाफ सर first half free है ना The second half, sir. नो सर प्लीज सर टेक द ऑल एक्स्ट्रा क्लासेस इन द फर्स्ट हाफ सर okay so tomorrow morning from 9:30 we'll start okay so 2 classes I will take okay
Yes, sir. Great. See, Sir, tomorrow, हाँ sir, बोलो। tomorrow we have class at 10:40, sir. Fluid mechanics. 10:40 से क्लास है, तो हम लोग 9 से स्टार्ट करते थे, है ना? Yes, sir. शार्पली 9 से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कहाँ तक हम लोग कवर कर पाते हैं। ओके, सो Okay, Yes, sir. sir. requested, please be present in the class because we मतलब much important topic is going to be covered. And second thing, after this module, we have digital electronics. Okay, so it is also very important for your perspective also, for civil and mechanical perspective also. Okay, and then we have the sensor one, and this is very like important those who are working in industry or those who want to go into the industry. Okay, so you will find everything what we will going to discuss here, but not in the form of what we will here discuss the practical use cases also, but totally we'll discuss here theories, the working principle, the constructions, where we are going to use these sensors and whatever the instrument we are going to study, where it is going to be used. When you go to the industry and if you work there, suppose automobile industries or any steel industries or power industries, if you go there, you will find so many sensors and so many instruments are connected and they are performing some their task. Okay, to have about or to bring the basic knowledge on that, you must seriously read these next coming 2 module. Okay, if you go there, it will be very useful for you. ऐसा आपको नहीं लगेगा कि हाँ पता नहीं क्या, मतलब ये तो कभी पढ़े नहीं, ये तो कभी आया नहीं, ये कहाँ से आ गया. So sometime if you go in industry, you can feel these things कि अरे ये कहाँ से आ गया, ये तो पढ़ा ही नहीं है, ये तो पढ़ा ही नहीं हुआ. Okay, so this is very important for you. Okay, sometimes what we do, we neglect these things. Okay, suppose I worked in industry and I feel that I have neglected the mechanical concepts and mechanical parts, civil parts, but when you are having some post, you have to handle everything. Okay, you have to understand the stress क्या है, कहाँ पे, मतलब means the basic meaning of these parameters आपको तभी समझ में आएगा. आप जब कोई प्रॉब्लम में हो तो ऐसा नहीं है कि वहां पे सिर्फ इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक का प्रॉब्लम हो सकता है. मे बी द सिविल, मे बी द मैकेनिकली प्रॉब्लम है, कहीं पे बेंड है इसीलिए सेंसर काम नहीं कर रहा, कहीं पे स्ट्रेस ज्यादा है तो इसीलिए सेंसर काम नहीं कर रहा. देयर आर सो मेनी थिंग इफ यू क्लोजली watch or closely right now you can't feel, but whenever you are working on the any section of in the industry, then you will face so many problems related to electrical and electronics also. So when you understand these things, basic thing कि ट्रांसफार्मर में एक्चुअली क्या होता है, तो आपको कोई मूर्ख नहीं बना सकता. ओके, somebody will tell you कि सपोज इलेक्ट्रिकल का कोई लड़का आया या इंजीनियर है, वो बोले नहीं नहीं मेरा ट्रांसफार्मर तो ठीक है, आपका कुछ अलाइनमेंट में गड़बड़ है. then you have to prove them, you have to give a clear concept कि ट्रांसफार्मर का काम है ना स्टेप अप एंड स्टेप डाउन करना. कैन यू शो मी द आउटपुट ऑफ द सेकेंडरी बाइंडिंग, हाउ मच यू आर गेटिंग, और रेटिंग क्या है ये ट्रांसफार्मर का. ओके, तो वो अगला बंदा भी समझेगा कि नहीं ही हैज नॉलेज, हम इसको मूर्ख नहीं बना सकते. इट्स very important to understand every small thing which is related with your profile. Okay, so when there is a system, तो आपको उसके बारे में जानना हो, बेसिक थिंग जो भी चीज. ओके, so that's why I think they have included this subject in your curriculum. So and this is very good for you
if you go to work in industry. Okay, so कोई बात नहीं, चलते हैं आगे. So we were at transistor. Okay, so as we discussed in the last class, transistor was invented by, कौन बनाया था ट्रांजिस्टर? अच्छा, किसी चीज को बनाने के लिए जरूरत ही क्या पड़ती? When you feel some need for that. अगर आप कोई सामान मार्केट से घर में भी लेकर आते हो तो आपके पास नीड होती है उसे, है ना? सपोज आटा खत्म, आटा की नीड है, आटा खत्म हो गया, फिर आप आटा लेके आते. नीड क्या है अभी? हाँ, मतलब अगर बेसिक नीड देखे तो हमारा क्या नीड था? कोई भी चीज खाना बनाना या ये करना, ये सीखना, नया नया खाना, मतलब इन्वेंट करना, ये नीड कहाँ से आया? कौन बोलेगा? जस्ट थिंक, दिस इज नॉट अ, ये इसका आंसर ये है, वो है, ये कोई मतलब उसका कोई बाउंड्री नहीं. ओके, एवरी थॉट कैन बी फिटेड इन. जब हम बोलते हैं ना नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, ओके, दैट टाइम वेयर दे आर, मतलब दे हैव मेड अ डायोड. हाँ, उसके बाद उनको जरूरत पड़ रहा था सिग्नल को प्रोसेस करने में. सिग्नल कोई फिजिकल क्वांटिटी है, सपोज कोई प्रेशर ट्रांसमीटर है या कुछ है, या टेम्परेचर से कुछ फिजिकल क्वांटिटी को हम सेंस कर रहे हैं, बट उसकी वोल्टेज लेवल बहुत कम है. राइट, वोल्टेज लेवल बहुत कम था, मतलब मे बी मिली वोल्ट में है. उसको आप उस इंफॉर्मेशन को आप गैदर ही नहीं कर सकते, मतलब उसको हम पढ़ ही नहीं सकते. राइट, क्योंकि बेसिक जो आपका जो डिवाइसेस था, है ना, और चीज जो सम सर्टेन वोल्टेज ऑफ लेवल पे काम करते, मतलब अगर उसकी स्ट्रेंथ 2 और 3 वोल्ट होगी या 5 वोल्ट होगी, तभी उसको हम पढ़ सकते हो उसमें है क्या. ओके, कौन है जी जिसको, म्यूट करो बाबू अपना, अरे म्यूट करो. ओके, सो दैट टाइम दे हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट कि कोई ऐसा डिवाइस है, जिस कोई ऐसा मतलब डिवाइस होना चाहिए जो हमारे वोल्टेज लेवल को इंक्रीज कर. ओके, सपोज मिली वोल्ट में है तो उसको रिक्वायर्ड वोल्टेज लेवल पे लेके आ जाए. ओके, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज एम्पलीफिकेशन. ठीक है, एक वीक सिग्नल को अगर हम स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एम्पलीफिकेशन, विदाउट डिस्टॉर्टिंग द ओरिजिनल shape of the signal. Okay, whatever the shape was initially before amplifying, it should be same after amplifying. Okay, so that is called as amplification in electronics or electrical. If you are increasing the strength of the signal, okay, without distorting its original shape, is called as amplification. Okay, so that that this is the need. Okay, this was the need at that time, so they are working on that. Then one day they have come up with this device called as transistor. Okay, and this was invented in Bell laboratory, and they have used in the switching circuit. Okay, that time in the telephonic. Okay, so ये जो खोज हुआ है ना ट्रांजिस्टर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब समझ लो कि ये इसके जैसा कुछ है ही नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स में. ओके, ट्रांजिस्टर, इसका टाइप बहुत सारा है, बट ये जो खोज हुआ ट्रांजिस्टर का, ये पूरा दुनिया बदल दिया इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड को. आप मोबाइल देखते हो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस देखते हो, उस पे मोबाइल अगर देखोगे तो उसमें तो लाखों ट्रांजिस्टर अंदर है उसके अंदर. कंप्यूटर देखो, उसमें तो करोड़ों ट्रांजिस्टर, ओनली ट्रांजिस्टर ही यूज करके पूरा बना हुआ है.
बस सपोर्ट में कुछ कुछ कंपोनेंट्स रहते हैं, बाकी सारा चीज ट्रांजिस्टर से बना हुआ। आप लैपटॉप यूज कर रहे हो, मोबाइल यूज कर रहे हो, कुछ भी प्रोसेसर, कुछ भी आईसी आप देखते हो ना, उसके अंदर ट्रांजिस्टर है। बस यही माइंड में फिक्स्ड कर लो। ओके, एनीथिंग यू आर सीइंग राइट नाउ ऑन द प्लेनेट, इलेक्ट्रॉनिक्स उसमें अगर है, अगर कोई चिप है तो उसके अंदर ट्रांजिस्टर। ओके, तो ये बहुत बड़ा मतलब इन्वेंशन रहा हमारे लिए। ठीक है, हम हमारे टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट के लिए ये बहुत बड़ा इन्वेंशन था। ठीक है, उसका नाम है बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, और खाली ट्रांजिस्टर। ओके, बाद में इसमें टाइप आता गया, जैसे हम लोग पढ़ेंगे, जैसे तो बीजेटी है, उसके बाद आएगा जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, फिर आएगा मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर। ओके, मोस्टली अभी बीजेटी कम यूज होता है, जनरली मॉस ट्रांजिस्टर ज्यादा यूज होता है। उसके बारे में भी हम बेसिक चीज पढ़ेंगे, कैसा कंस्ट्रक्शन है ना, उसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अभी आपको इस टॉपिक के बारे में आपके सिलेबस के अनुसार डिस्कनेक्ट हो गया था क्या? हाँ यस सर। सर, डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, पता नहीं चला। बारिश हो रही है यहाँ पे बहुत तेज। इधर भी हो रहा है सर, बहुत जोर से बारिश हो रहा है सुबह से। हाँ हाँ, या इधर भी सुबह से हो रहा है। कोई नहीं, तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द, रात भर पड़ा है सर इधर। हाँ बाबू इधर भी पड़ा है, बारिश का सीजन आ गया ना। चलो, हाँ सर। ओके, सो दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग, कि जहां भी आप देखते हो, जो जगह पे आप देखते हो, कहीं पे भी इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसके अंदर ट्रांजिस्टर है। ठीक है, उसके अंदर ट्रांजिस्टर है, और भर भर के, ऐसा नहीं कि एक दो है। अगर आप लैपटॉप देख रहे हो, उसमें जो प्रोसेसर लगा हुआ है, उसके अंदर तो लाखों, टेंस ऑफ लाख उसमें ट्रांजिस्टर है ना। तो सो मेनी ट्रांजिस्टर will be there if you are making something, some IC and any, because everything was is building upon the transistor. Okay, उस ट्रांजिस्टर को बेस करके, ट्रांजिस्टर को यूज करके ही बनाया गया है बहुत सारी चीज। ओके, तो फॉर योर सिलेबस व्हाट we will see in the transistor is, ट्रांजिस्टर क्या होता है, उसके टाइप्स कितने हैं, और उसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसमें कितने मोड्स होते हैं जिसको हम यूज करते हैं, राइट। ओके, तो इतना ही पढ़ने का है ट्रांजिस्टर में। आप ऐसे ट्रांजिस्टर पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट है, देयर आर सो मेनी थिंग। ओके, बट फॉर योर सिलेबस, और जहां तक आपको जानना चाहिए, जो बेसिक चीजें, क्या होता है, कैसे ऑपरेट होता है, विल सी। ओके, बट ये मार्क कर लो कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में जितने भी आपके कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, 99% ट्रांजिस्टर होते। कितने परसेंट? लगभग 99%। ओके, तो सोचो कि ये कितना बड़ा इन्वेंशन था, सारा चीज इसी को यूज करके बना। सो द ट्रांजिस्टर वाज डेवलप्ड, और डेवलप नहीं, आप बोल सकते हो इन्वेंटेड इन 1950 और 48 भी बोलते हैं बहुत लोग। ओके, 47, 48। ओके, so these three people, है ना, have invented the transistor, and this was the first Sir, they have the shown to the screen world. is not sharing, sir. हाँ, Screen share नहीं हो रहा है sir.
कुछ शेयर नहीं हो रहा है? नहीं सर। नो सर नहीं हो रहा है। एक सेकंड बाबू। मतलब डिस्कनेक्ट होने के कारण ना वो स्क्रीन शेयर भी बंद हो गया। अभी आ रहा है? Yes sir, now it is visible. Okay. So these three people, okay, Barden, Barton and Shockley, okay, they have made the first transistor in Bell Laboratory, okay, and this is the pictorial view of the first transistor, okay. So this is the first transistor, okay, that they have shown to the world, and for this they have received the Nobel Prize of Physics, okay. So basically, what is transistor? So transistor is a combination of two words, okay, transfer and resistor, which means the transfer of resistance will take place from input to the output section, okay. If we consider the one side as input and another side is output, then we'll have the transfer of resistance. That means from the input side we are having some resistance. Gradually it's going, if you measure to the output side, it is going to be increased one, okay. So basically they called as this transfer of resistor, okay. So the transistor, the name itself consisting of two words, transfer and resistor, okay. So this means that transfer of resistance from one place to other place in the system, in the device, okay, from input to the output side. We'll see how this is, okay. So totally, if we talk about only the transistor, right now we are going to read about the bipolar junction transistor. क्या बोलते हैं इसको? Bipolar junction transistor. वॉइस में प्रॉब्लम आ रहा है सर। वॉइस में प्रॉब्लम आ रहा है? हेलो, कट कट के आ रहा था सर। कट कट क्या है? अभी ठीक है सर। Okay. अभी ठीक है। So bipolar junction transistor is a three-terminal device consisting of three terminal. Basically, it can be used for amplification that we have discussed and switches, logic switches. Okay. मतलब स्विचिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं इसको, और एम्प्लीफिकेशन के लिए तो यूज करते ही है, ठीक है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? No sir. Okay. So now it has three basic terminals. It has three terminals only, or you can say. So first one is called as emitter, second one is called as base, and third terminal is going to be called as collector. Okay. और ये दो टाइप में होता है, पीएनपी एंड एनपीएन, ओके, ठीक है। दो टाइप में होता है, एक को हम क्या बोलेंगे, पीएनपी, और दूसरे को एनपीएन। आगे चलते हैं, एंड दिस इज द कंस्ट्रक्शन,
ओके, एनपीएन एंड पीएनपी जो हम अभी बात कर रहे थे उसका ये अभी आप देखो. ओके, so if we talk about the construction of the these two type NPN, PNPN, what is we are having? We have a semiconductor material. On that one side we are doping with N, in middle we are doping with P, and again N. Okay, and from this side if we connect, we are calling as this is emitter. Okay, this section whole emitter. Okay, and this terminal is called as emitter terminal, and this is called as base. Okay, base, and we are denoting with the B. Okay, and this section totally is called as collector. Okay, collector. Okay, and denoted as C. Okay, now if you talk about diode analogy, then if you take two diode, okay, two diode, and if we connect like this, okay, one side is faced with the other side of diode, same type facing, if you do, then this is also can be called as transistor structure, but this is not a transistor. It will not work as this one. Okay, but for making you understand, you can say like that. If you take two diode and if we connect side by side, then a structure is going to be made, and this can be said as transistor structure. Okay, but this will not work as a transistor, but स्ट्रक्चर उसके जैसा है, बट ये उसकी तरह काम नहीं कर सकता. ओके, उसका रीजन है, विल डिस्कस दैट. ओके, सो डायोड में क्या होता है, एक एनपी और पीएन जो भी है ना, एनपी और पीएन लोगे आप, है ना, एन एंड पी, और दिस इज पी एंड दिस इज एन. इफ यू कनेक्ट दिस, व्हाट विल हैव, ये पी तो मिल जाएगा अगर जोड़ दोगे इसको, तो हमारे पास क्या है, एन पी और एन. एक ट्रांजिस्टर का एक स्ट्रक्चर है ना. इसी तरह से आप दूसरे साइड को लोगे और ऐसे जोड़ोगे तो क्या बचेगा आपके पास, पी एन, ये दोनों जुड़ जाएगा तो एन बन जाएगा, और ये पी, तो आपके पास क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, पी एन, पी का एक स्ट्रक्चर बन रहा है ना. तो ये भी एक ट्रांजिस्टर का टाइप है. ओके, and this is the circuit symbol, okay, for NPN transistor. Okay, circuit symbol for NPN transistor. N रहेगा मतलब करंट जो है वो डिवाइस को छोड़ के बाहर निकलने का सिंबल है. ओके, इसका पहचानने का तरीका है. ओके, कभी कभी आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में ऑब्जेक्टिव में ऐसा सिंबल दे देगा, पूछेगा कि ये कौन सा टाइप का ट्रांजिस्टर. ओके, so from this you can identify if the current direction, this is the direction of the current. Okay, so is leaving from the device, that means this is NPN, and if coming to the device, then this is PNP. Okay, so this is all about the construction. Okay, so basically transistor is what, अभी एक लाइन में बोलो तो, कोई भी. Three-terminal device है sir. Transistor is a three-terminal device. Good. Transistor is a three-terminal device which is used to amplify and switches the electronic signal. Okay. Okay, sir. और क्या बोल सकते हो, transistor is made up with two term, transfer and resistor. Okay, ठीक है ना. स्टार्ट करके Yes, sir. transfer and resistor, the meaning of this is
the transfer of resistance from input side to output side. Okay, if we talk about this circuit, this symbol, so we'll have some input section here and some output section. Okay, in this we'll see. Okay, this is the symbol. Yes. Okay, so it's very, very important to have build the basic knowledge. So this is the three terminal. आपको हमेशा दिमाग में रखना है. We have three terminal. The name is ammeter, base and collector. Okay, now आप इसमें एक बड़ा चीज है, ये जो कौन है, क्या हुआ बाबू? बोलो, कोई तो कुछ बोल रहा था. चलो कोई नहीं. ये जो एमीटर और जो बेस और ये जो कलेक्टर है, ये सबका जो एरिया है वो सेम नहीं होता. ओके, एमीटर बेस से थोड़ा बड़ा होगा, बेस सबसे छोटा होगा और कलेक्टर का एरिया सबसे बड़ा होगा. ओके, इन द फॉर द कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू. ऐसा नहीं कि आप एमीटर को जितना लिए हैं उतना ही आपका बेस होगा. ओके, और उतना ही आपका कलेक्टर होगा. ऐसा इसका कंस्ट्रक्शन नहीं होता. ओके ओके, एंड डोपिंग लेवल भी, जो आप डोपिंग जैसे एन है तो आप डोपिंग करके नहीं एन बनाओगे, तो इसका जो डोपिंग लेवल है वो भी सेम नहीं होता. डोपिंग लेवल एमीटर का सबसे ज्यादा, बेस का सबसे कम और कलेक्टर का मॉडरेट. ओके, एरिया वाइज आप देखोगे तो कलेक्टर का सबसे बड़ा एरिया है. ओके, फिर एमीटर का ये क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, बहुत बार पूछा गया है ये. और बेस का सबसे कम है, तो बेस का डोपिंग लेवल भी कम है और एरिया में भी कम है. बेस रीजन. ओके, we'll discuss ki why this is, why they have made like this. Okay, when we will deal with the working of this. Okay, सर हाँ बाबू. सिविल का सर 9:50 से क्लास है सर, नेक्स्ट क्लास. ओके, नेक्स्ट 50 से 9:50 से सर. 9:50 से. तो सर मतलब क्लास में इन कर गए क्या सर? सर ये लिंक से बाहर आएंगे तब ना उसमें जा सकते. अच्छा, हाउ मच टाइम वी आर हैविंग? Okay, you may leave. Okay, just if you want to wait 1 or 2 minutes, otherwise you can leave. I'm just going to finish this. Okay, ठीक है ना? यस सर. Okay, so this will go and we talk about the analogy, what we have discussed here. The emitter, base and the collector, and this is the symbol. ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं हम हमेशा. ये एक चीज मार्क रखना, कभी कभी ना एग्जाम में क्या करता है वो लोग कि ये वाला और ये वाला दोनों को एक ज्वाइन कर देता है, बट वो रॉन्ग है. ठीक है ना, मतलब वो क्वेश्चन पूछता है, ऐसा आपको सिंबल दे देगा. ठीक है,
ओके, एक ऐसा सिंबल है और एक ऐसा है, दोनों देखने में सेम लगेगा, ठीक है? मतलब बेस कलेक्टर जंक्शन और एमिटर जंक्शन ये दोनों कभी ज्वाइन नहीं होगा, ठीक है? दोनों अलग अलग जगह पे, एमिटर सेक्शन इधर है, कलेक्टर सेक्शन इधर है, वो दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। ओके, तो जब कंस्ट्रक्शन आप करोगे तो वो गैप दिखेगा, ऐसा नहीं है कि ये टर्मिनल और ये टर्मिनल ज्वाइंट होता है। तो ऐसा कोई डायग्राम है तो वो मतलब वो गलत डायग्राम है, ठीक ना? मतलब एग्जाम में ऑप्शन दे देगा कि हाँ बताओ कि कौन सा है, तो वो रॉन्ग होगा। आप ऐसा वाला सेलेक्ट करोगे जिसमें डिफरेंस हो। ओके, वेरी बेसिक चीज है। ठीक, तो दिस इज द circuit symbol, okay, for the NPN and PNP transistor. Okay. सर क्या करें सर, लीव कर दे कि नहीं? हाँ लीव कर दो, चलो नेक्स्ट कल ही पढ़ते हैं, ठीक है? हम भी मतलब स्टॉप कर देते हैं। ओके, ओके सर। लीव हो जाए, विल डिस्कस इन मतलब टुमारो, ओके, मॉर्निंग। तो प्लीज बी प्रेजेंट इन 9। ओके, ओके, थैंक यू सर। ओके। इन कर दो।